Hello all my dear students, a precious good morning to all of you. Welcome in today's class. This is Ajay Prakash from Subrat Singh Children Academy, and as you know, at present your chapter number 3 human reproduction is running, and in previous videos we have completed structure of an ovum as well as comparison of spermatogenesis and oogenesis. So in today's class we are going to discuss about very important event for your board as well as competitive examination, that is what menstrual cycle. And in board examination there was no gap. All 7 sets were fulfilled with this topic. It means that बोर्ड का कोई भी एक ऐसा साल नहीं रहा है बेटा, कोई ऐसा ईयर नहीं रहा है जहाँ पे इस टॉपिक से क्वेश्चन ना आया हो. सो दिस इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक. वॉच द वीडियो till the end and definitely you are going to write all those answers those were related to your topic menstrual cycle. So I am starting with menstrual cycle. This will be part 1. We will complete this menstrual cycle in 2 parts because menstrual cycle introduction as well as graphical representation and as well as hormonal control of these reproductive cycles, or we can say that cyclic changes is also significant. So here I am starting with menstrual cycle, that is also known as ovarian cycle. Remember, this is the characteristic feature of human females and apes. ओके, यानी आप देखेंगे तो ये जो साइक्लिक चेंजेस हो रहे हैं ये ह्यूमन फीमेल्स और एप्स में क्वाइट ऑफन है, और बाकी जो हमारे एनिमल्स हैं उसमें बेटा ईस्ट्रस साइकिल होती है एट द प्लेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल. या हम सीधा सीधा लिख सकते हैं दिस इज द कॉमन फीचर ऑफ प्राइमेट्स. दिस इज द कॉमन फीचर ऑफ प्राइमेट्स. और उन प्राइमेट्स में हम किसको, ह्यूमन को और एप्स को रखते हैं. तो प्राइमेट्स में क्या मिल रही है, मेंस्ट्रुअल साइकिल, और जो नॉन प्राइमेट्स हैं उसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, ईस्ट्रस साइकिल. ऐसे जो सीजनल ब्रीडर्स हैं जैसे आप देखते हैं काउज, बफेलोज, डॉग, कैट, तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, ईस्ट्रस साइकिल. और इसके अलावा जो भी प्राइमेट्स की कैटेगरी में है जैसे मैंने लिखा हुआ है ह्यूमन फीमेल्स हैं, एप्स हैं, यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, यू आर गोइंग टू फाइंड आउट द मेंस्ट्रुअल साइकिल. एंड दिस इज व्हाट सिंपली साइक्लिक change in female reproductive system. This is what cyclic change in female reproductive system, and takes place around 28 days. Remember, the perfect cycle is of 28 days, but it may range till 27 to 35 days. But जो एक perfect cycle होती है that is of 28 days, and it begins at puberty. Known as, this line is important, known as menarche. क्या बोलते हैं बेटा उसको, मेनार्क बोलते हैं. अराउंड 11 to 13 years. इन स्टैंडर्ड बुक्स इट इज़ रिटन 11 to 15 years. बट बेटा अब जैसे जैसे हम मॉडर्नाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं ये भी जो एज है ना ये भी लेस काउंट हो रहे हैं. अब 11 से 13 के आसपास ये साइकिल स्टार्ट हो जाती है. एंड कंप्लीट suspension of this cycle is known as menopause. And simply it takes place around 45 to 55 years on an average. हम एग्जैक्ट अगर देखें तो 50 years के आसपास ये आपको देखने को मिलेगा. रिमेंबर, दिस remains suspended during pregnancy. This line is also important. Question may be framed that why menstrual cycle remains suspended during the pregnancy, because as you know at the time of pregnancy fetus is already developing inside the uterus, so there is no need of any other ovum to be fertilized. तो अगला ओवम
हमें आवश्यक ही नहीं है, उसका फर्टिलाइजेशन ज़रूरी ही नहीं है, क्योंकि एट द टाइम फीमेल्स एक ही प्रेगनेंसी को बेयर ऑफ कर सकती हैं, तो वो ऑलरेडी कहाँ ऊम्ब के अंदर फीटस डेवलप कर रहा होता है, या हम कह सकते हैं क्योंकि उस समय ऑलरेडी फीटस मदर की ऊम्ब में डेवलप कर रहा है, किसी और ओवम की हमको ज़रूरत नहीं है और उसके फर्टिलाइजेशन की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ना तो ओवम बनना है, ना तो उसका फर्टिलाइजेशन होना है। दैट्स वाई दिस साइकिल विल बी सस्पेंडेड एंड एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी देयर इज़ वेरी हाई लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन एंड हाई लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन इनहिबिट menstrual cycle। तो ये ध्यान रखना है कि remain suspended during the pregnancy and may be suspended during lactation। बट इसकी जो बेटा एफिशिएंसी है वो 100% नहीं है कि लैक्टेशन के समय ये सस्पेंड रहेगी, इसकी एफिशिएंसी 100% नहीं है, क्योंकि सर्टेन केसेस में देखा गया है कि एक ही साल के अंदर बेटा दूसरा बेबी भी हो गया है। तो अगर ये लैक्टेशन पीरियड के दौरान सस्पेंडेड थी तो कैसे वो बेबी फिर से डेवलप हुआ, तो इसमें थोड़ा सा कंट्राडिक्शन है। बट कुछ स्टैंडर्ड बुक्स ने बताया कि ये सस्पेंडेड रह सकती है कहाँ, लैक्टेशन के समय। क्यों रह सकती है? ड्यू टू prolactin hormone, due to prolactin hormone that influence the activity of FSH। यानी जो प्रोलैक्टिन है ये FSH को अपना काम ठीक से करने नहीं देता है। That's why we can say that at the time of pregnancy as well as during the lactation period this cycle may be suspended। Remember this cycle completed in 4 steps। ये बेटा 4 स्टेप या हम कह सकते हैं फेजेस होते हैं जिसमें ये कंप्लीट होती है। द फेज नंबर 1 दैट इज नोन एज menstrual phase and this menstrual phase start with day 1 to day 5। then after there is another phase that is what follicular phase, and this follicular phase is also known as proliferative phase। Proliferative phase start with day number 6 to day number 13। then after there will be phase number 3rd that is known as ovulation and taken place on and around 14th day। and then after last one is luteal phase, this is also known as secretory phase। this is also known as secretory phase starting with day 15 to 28। if ovulation taken place on day 14th it will start from day 15। if ovulation taken place on 15 it will start on 16 and so on। so this was all about an outline of the menstrual cycle। question may be framed from here। all these phases are very very important। first phase that is menstrual phase is characterized by means of the vaginal bleeding। यहाँ पे बेटा क्या होती है? vaginal bleeding होती है and this vaginal bleeding lasts about 1 to 5 days। then after because here endometrial lining got breaks, hence अगर कोई चीज़ टूटा है तो उसका रिपेयरिंग होना जरूरी है। तो अगले फेज में रिपेयरिंग वर्क होता है दैट इज नोन एज फॉलिकुलर फेज। यहाँ पे फॉलिकुलर फेज में जो ओवरीज हैं यहाँ की फॉलिकल्स डेवलप करती हैं और यूट्रस में जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग टूट गई थी वो फिर से रिपेयर होती है एंड इट स्टार्ट फ्रॉम डे 6 टू डे 13 एंड देन आफ्टर ऑन द 14th डे there is what release of mature ovum and that condition is known as what ovulation, and in a perfect cycle it will takes place at day 14th। and then after there is a last one that is known as luteal phase। this is known as luteal phase because here corpus luteum will secrete progesterone hormone, and because corpus luteum is secreting the progesterone hormone that's why this is also known as secretory phase। secretory phase क्यों है? क्योंकि यहाँ पे corpus luteum कुछ secrete कर रहा है और जो secrete कर रहा है वो क्या है? वही तो है progesterone। so this was all about the outline of the menstrual cycle। so in the last we will discuss very detail about the menstrual phase, follicular phase, ovulation and luteal phase along with the various hormone and their impact। so I am going to erase this, and after erasing this I will start with the phase number 1 that is follicular phase। okay then students, so here there are certain important topics or questions those who are framed from here। so first of all we will discuss about that here menopause
मेनोपॉज टेक्स प्लेस क्यों होता है, टेक्स प्लेस ड्यू टू लो लेवल ऑफ एस्ट्रोजन, ड्यू टू लो लेवल ऑफ एस्ट्रोजन and hence in females mood swing, appearance of facial hair, hot flushes may be seen as well as there is irritation or anxiety। तो बेटा ऐसी फीमेल जिसमें मेनोपॉज हो रहा होता है उनमें कुछ चेंजेस आते हैं, उन चेंजेस के माध्यम से वो इजीली आइडेंटिफाई कर सकती हैं कि हाँ कंडीशन मेनोपॉज वाली है। वो चेंजेस कौन कौन से हैं आपको ये मालूम होगा। इन द केस ऑफ फीमेल्स देयर इज़ वेरी लो लेवल ऑफ टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ऑल्सो। तो फीमेल्स में भी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है लेकिन उसका लेवल बहुत कम होता है। तो जब फीमेल्स में एस्ट्रोजन का लेवल कम हो जाता है और उसके इफेक्ट भी कम हो जाते हैं तो उस समय टेस्टोस्टेरोन का इफेक्ट कहीं ना कहीं दिखने लगता है। यानी ऐसी फीमेल्स में बेटा आपने देखा होगा कुछ फीमेल्स में मूंछें हल्की हल्की दिखने लगती हैं या फेस पे हेयर्स दिखने लगते हैं। तो ऐसी कंडीशन में जो रिजल्ट आ रहा है वो रिजल्ट किसके इम्पैक्ट की वजह से आ रहा है, लो लेवल ऑफ एस्ट्रोजन की वजह से। तो जब एस्ट्रोजन का लेवल कम हो गया तो जो टेस्टोस्टेरोन बहुत कम अमाउंट में था उसका भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट देखने को मिला। दूसरा मूड स्विंग, मतलब बेटा यहाँ पे एंजाइटी लेवल बढ़ेगा, कभी मूड अच्छा रहेगा कभी ख़राब रहेगा। जो फेस है वहाँ पे हीट का एहसास होगा, ऐसा लगेगा बहुत गर्मी फील हो रही है चेहरे के आसपास के एरिया में, स्किन वगैरह थोड़ा सा डार्कर हो सकती हैं। तो ये सारे चेंजेस होते हैं जो हमको देखने को मिलते हैं कहाँ, जब मेनोपॉज हो रहा होता है उस कंडीशन में। इसके अलावा कुछ चीज़ें और हैं आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। जो बेटा मेनार्क है, मेनार्क इज ऑल्सो known as first menstrual flow and in the last, जैसा मैंने आपको बताया menstrual cycle was the characteristic feature of the primates। कुछ बेटा ऐसे नॉन प्राइमेट्स में है जहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगी एज ए एक्सेप्शन। तो उसमें हम देखेंगे 4 species of bat, elephant shrew and spiny mouse also have menstrual cycle। यानी अगर हम देखें प्राइमेट्स के अलावा भी कुछ ऐसे हैं, 3-4 स्पीसीज बैट्स की हैं, एलिफेंट श्रू के साथ साथ स्पाइनी माउस है जहाँ पे ये आपको देखने को मिलेगा। अब हम एक एक करके आपको फीचर्स बताते हैं। फेज़ नंबर 1 जो कि था हमारा फेज़ फर्स्ट, जिसको आपने और हमने क्या कहा था, मेंस्ट्रुअल फेज़, जो कि स्टार्ट हुआ था डे 1 से लेके कब तक था, डे 5 तक। इट में रेंज टू डे 7 टू, बट 1 से 5 तक ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, ये 1 से 7 भी हो सकता है। यहाँ पे क्या होता है बेटा, इंडोमेट्रियम ब्रेक्स, इंडोमेट्रियम। अब ये इंडोमेट्रियम आपको मालूम है क्या है, इंडोमेट्रियम इज द इनर मोस्ट लाइनिंग ऑफ द यूटेरस। सो इंडोमेट्रियल लाइनिंग ब्रेक्स, और जब इंडोमेट्रियल की लाइनिंग ब्रेक होती है, इन दैट कंडीशन ब्लड वेसल्स एंड secretions comes out as menstrual flow due to very low level of progesterone hormone, in absence of pregnancy।
यानी कुछ चीज़ें आपको समझ में आई होंगी कि जो मेंस्ट्रुअल फेज है ये किसकी वजह से है, लो लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन की वजह से है। प्रोजेस्टेरॉन का लेवल लो कब होगा, जब प्रेगनेंसी नहीं होगी तब होगा। तो जब प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम है, प्रेगनेंसी नहीं हुई है, ऐसी कंडीशन में जो यूट्रस की इनर मोस्ट लाइनिंग थी एंडोमेट्रियम, जो अपने आप को तैयार कर चुकी थी फीटस को रिसीव करने के लिए, रिचली सप्लाइड हो चुकी थी ब्लड वेसल्स से, अब वो क्या होगी, चूंकि प्रेगनेंसी हुई नहीं है तो उस कंडीशन में उसको जो अपने आप को प्रिपेयर किया था उसकी सारी प्रिपरेशन धरी की धरी रह गई। इन दैट कंडीशन नाउ द ब्लड वेसल्स दोज वर रिचली सप्लाइड विद द ब्लड गॉट ब्रेक्स एज वेल एज लाइनिंग ऑल्सो गॉट ब्रेक्स एंड इट अल्टीमेटली फॉर्म्स द मेंस्ट्रुअल फ्लो। यानी जो मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है थ्रू वजाइना वो बाहर आता है। एक्चुअल उस मेंस्ट्रुअल फ्लो में है क्या, उस मेंस्ट्रुअल फ्लो में जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग टूटी है उसकी वजह से ब्लड वेसल्स, ब्लड, म्यूकस और एंडोमेट्रियल लाइनिंग के सिक्रेशंस ये सभी मिलके क्या बनाते हैं, मेंस्ट्रुअल फ्लो बनाते हैं। तो क्वेश्चन मे बी फ्रेम दैट व्हाट इज मेंस्ट्रुअल फ्लो। सो मेंस्ट्रुअल फ्लो कंटेन्स रप्चर्ड ब्लड वेसल्स, ब्लड, म्यूकस, सिक्रीशन ऑफ द एंडोमेट्रियम ETC। तो ये सभी मिलके क्या बना लिए, मेंस्ट्रुअल फ्लो। ये सब हुआ कब, जब लो लेवल था किसका, प्रोजेस्टेरॉन का था। तो दिस वाज द फेज नंबर 1। अब हम देखेंगे फेज नंबर 2, दैट इज नोन एज फॉलिकुलर फेज। फॉलिकुलर फेज, और फॉलिकुलर फेज जैसा कि आपको मालूम है 6 से 13वें दिन तक होगा। इट इज ऑल्सो नोन एज proliferative phase. Why this is known as proliferative phase? Because in this phase there is a repairing of the endometrium. यहाँ पे क्या होता है, repairing of endometrium, repairing of endometrium and growth of follicular cells, growth of follicular सेल्स। यानी जो FSH हार्मोन है एंटीरियर पिट्यूटरी के द्वारा रिलीज किया गया है उसके इन्फ्लुएंस की वजह से कौन सा फेज होगा, फॉलिकुलर फेज होगा, जो 6वें से 13वें दिन तक होगा। इसी को हम प्रोलिफेरेटिव फेज भी कहते हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन बोर्ड में पूछा गया है, व्हाई फॉलिकुलर फेज इज ऑल्सो नोन एज प्रोलिफेरेटिव फेज। तो आप बताओगे फॉलिकुलर फेज इज ऑल्सो नोन एज प्रोलिफेरेटिव फेज बिकॉज हियर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द FSH hormone released by the pituitary gland, there will be growth of the follicular cells, and along with the growth of the follicular cells there will be repairing of the endometrium that got breaks during the phase number 1, that was menstrual phase। यानी जो आपका दूसरा फेज है फॉलिकुलर फेज, इसको हमने प्रोलिफेरेटिव फेज इसलिए कहा क्योंकि इस समय एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन FSH के इन्फ्लुएंस के कारण फॉलिकुलर सेल्स की ग्रोथ हो रही है और इसके साथ साथ जो अंदर की लाइनिंग टूटे थे यूट्रस की उसके रिपेयरिंग का काम भी चल रहा है। यानी जो आपका फॉलिकुलर फेज है इसके लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, FSH। उस FSH हार्मोन को कौन रिलीज कर रहा है, एंटीरियर पिट्यूटरी। पहला फेज था मेंस्ट्रुअल फेज, इसके लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल था, लो लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, FSH। देन देयर विल बी थर्ड फेज दैट इज नोन एज ओव्यूलेशन। ये बेटा एक परफेक्ट साइकिल में कब होता है, 14th डे होता है, ठीक है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अनदर हार्मोन known as LH, luteinizing hormone secreted by the anterior pituitary, and under the influence of the LH hormone Graafian follicle will rupture and it will release the secondary oocyte। यानी ovulation के लिए responsible है कौन, LH। तो LH is also known as ovulation causing hormone। चौथा आपका और लास्ट है luteal phase, that is also known as secretory phase। Question may be framed here that why luteal phase is known as secretory phase। तो आप बताओगे luteal phase is known as secretory phase because here the temporary endocrine gland, that is what corpus luteum, it will secrete progesterone hormone। It will start with day 15th to 28 if ovulation taken place on the day 14th। यहाँ पे होगा क्या बेटा, endometrial lining got thickest, यानी यहाँ पे जो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग है वो सबसे मोटी हो जाएगी। तो यहाँ पे एंडोमेट्रियम जो होती है नियरली 5 mm की हो जाती है, मतलब ये काफ़ी थिक हो जाती है। एंड रिलीज ऑफ और सिक्रीशन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन that support
प्रेगनेंसी। और अगर बेटा फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ ओवम का तो प्रेगनेंसी नहीं होगी। उस कंडीशन में जो आपकी टेम्पोररी एंडोक्राइन ग्लैंड थी कॉर्पस लुटियम वो डिजनरेट हो जाएगी और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन सेक्रेट नहीं होगा। उस कंडीशन में फिर से जब प्रोजेस्टेरॉन के हार्मोन का लेवल डाउन होगा तो आपकी अगली मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाएगी। तो ये 4 के 4 फेज थे और इन 4 फेजेस के जो इम्पैक्ट थे वो आपके सामने हैं। अब लास्ट में बेटा यहाँ से क्वेश्चन आया है कौन कौन से हार्मोन्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं ओवेरियन एक्टिविटीज़ को, कौन कौन से ऐसे हार्मोन्स हैं जो अफेक्ट करते हैं यूटेराइन एक्टिविटीज़ को, कौन कौन सी ओवेरियन एक्टिविटी होती है, कौन कौन सी यूटेराइन एक्टिविटीज़ होती हैं, कौन कौन से हार्मोन्स हैं जो पिट्यूटरी से रिलीज़ किए जाते हैं। तो हार्मोनल कंट्रोल ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल एज वेल एज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल इज द नेक्स्ट पार्ट. Okay then students, so this was all about the introductory portion of the menstrual cycle. I hope that after watching the video there will not be any doubt, and if there is any doubt you can leave in your comment section or you can also WhatsApp your doubts or queries on this number 9140558523. I am definitely going to answer, and you can also get the notes on this WhatsApp number. So that is all about for today. Thank you very much for watching the video, and don't forget to like, subscribe and share with your friends. So that is all about. Once again, keep smiling, have a nice day. Jai.